Hello students, welcome to chemistry classes once again. Stay home, stay healthy. And today we will going to discuss remains two topic from the last class, which is average rate of reaction and instantaneous rate of reaction. Before starting these two topics, we will start from the last class. As you know that in the last class we will discussed already about the rate of chemical reaction, जिसमें हमने पढ़ा था the speed or velocity at which the reaction takes place known as the rate of chemical reaction, and chemically we can define the rate of chemical reaction is the rate change either reactant or product. मतलब rate change जो है या तो reactant या product की जो rate change है उसी को हम rate of chemical reaction कहते हैं. फॉर्मूला हमारे पास है rate equals to change in concentration over time taken. How can we change in concentration? Decrease in concentration of reactants. So for decreasing we will choose negative sign over time taken, and rate equals to positive, that means increase in concentration or of product upon time taken. For a general reaction R gives out P in time T, so the rate equals to minus D concentration reactant over dt is equals to minus D concentration R over dt, rate equals to plus, that means increase D concentration product over dt, D concentration P over dt, and the unit will be mole into liter inverse into second inverse or mole into liter inverse into minute inverse. तो यहाँ बेटा हमने केवल जो है रेट के बारे में डिस्कस किया था. अब हम बात करेंगे कि रेट कितने टाइप की होती हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेट, एवरेज रेट एंड इंस्टैंटेनियस रेट. And now first we discuss what is the basic difference between the average rate and the instantaneous rate. So average rate means, suppose we will going to discuss about a practical or a chemical reaction which takes place in a part. So when the reaction will be takes place in a part, so for such kinds of reaction we should be analyze with the average rate of reaction. उसके लिए average rate of reaction का यूज किया जाता है. सपोज एक रिएक्शन है जिसको हम अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग पार्ट में हम कंप्लीट करते हैं, तो उसके लिए हमेशा ध्यान रखना है कि हमें एवरेज रेट को डिस्कस करना है. और सपोज अगर एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम में हम जो है किसी एक पर्टिकुलर टाइम में उसकी रेट को डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो रेट जो है वो इंस्टैंटेनियस रेट कहलाएगी. तो हम देखते हैं कैसे पढ़ेंगे इन्हें. सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स कंसंट्रेशन में जो चेंज होगा पर यूनिट टाइम चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, इसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. मतलब पर यूनिट टाइम में कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है उसे हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. सो फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन रिएक्टेंट गिव्स आउट प्रोडक्ट. यहाँ पे मैंने कंडीशंस लिखी हुई हैं. यू विल टेक नेगेटिव, आपको नेगेटिव साइन लेना है जो मैंने कल भी बताया था, विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, एंड टेकिंग पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट. सो द एवरेज रेट इज इक्वल्स टू माइनस प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन over time taken, del C over del T. Del C you can choose like this or like this, right? Now instantaneous rate of reaction, the rate of change of concentration at a particular or instantaneous time. यहाँ पे पर यूनिट टाइम होता है और यहाँ पे पर्टिकुलर इंस्टैंटेनियस टाइम रहता है फॉर ए गिवन टेम्परेचर, किसी दिए गए टेम्परेचर पर. फॉर अ जनरल रिएक्शन R gives out P, R instantaneous, limit del T tends to 0 minus plus delta C over delta T, change in concentration over time taken. Now we can written as also, अगर यहाँ पे चेंज इन कंसेंट्रेशन बहुत स्मॉल हो तो स्मॉल चेंज इन कंसेंट्रेशन के लिए हम यहाँ पे डेल्टा की जगह डिफरेंशियल भी ले सकते हैं. सो इंस्टैंटेनियस रेट इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 माइनस प्लस डेल सी ओवर डेल टी. तो आपको याद रखना है कि जब एवरेज रेट की बात करेंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, और जब किसी इंस्टैंटेनियस रेट की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला. हालांकि दोनों में कुछ ज्यादा बेसिक डिफरेंस नहीं होता, बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब कोई रिएक्शन पार्ट में कंप्लीट हो रही है तो एवरेज रेट हम कैलकुलेट करेंगे, और किसी एक पर्टिकुलर टाइम में अगर वो कंप्लीट हो रही है तो हम वहां पे इंस्टैंटेनियस रेट के बारे में डिस्कस करेंगे.
सो आज के लिए ये टॉपिक यहाँ पे कम्प्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।